guys, welcome to 20th November 2023, the current affairs analysis. I am so sorry for not being consistent, like big sorry. And I have a reason why I couldn't do yesterday's analysis. Okay, let's open up. Mentally, I'm not in a very good place, to be really frank. If I'm showing up here, I mean, it takes at least 1.5 hours of inner talking to bring up myself here in front of you guys and speak with so much of I don't know what confidence I should call it or not. And yeah, so it is taking that time because some issues, I mean random issues taken to my head really for long. I know something not should not be done like that. बहुत ज्ञान देती हूँ मैं तुम लोगों को, but yeah, probably would be okay next 2 to 3 days because and yesterday one was mental and the second was my nib. Okay, not my nib, the pen's nib जो जिसके साथ मैं ये scribble करती हूँ ये टूट गई. या तो आई नेवर न्यू, मुझे लगा कि यार मतलब नई पेंसिल लेकर आनी पड़ेगी, बट इवेंचुअली आई गॉट टू नो दैट यू कैन बाय अ निब फ्रॉम एप्पल स्टोर, सो आई बॉट द निब एंड वी आर बैक टू वर्क. ये so that's the story. And yeah, I know a lot of you don't like the story time, but I love giving it, and I know a lot of you also like the story time. So yeah, for all those of you who love it, it's for you, and for all those who don't, try and skip and just see what's ahead in the newspaper. Okay, fine. To live equally balanced between your heart and your mind is to live a life of bliss. When your heart and mind are balanced, your body is in complete harmony, and so is your life. So they're asking us to balance our heart and mind. तो मेरे को ये लगता है, जो मेरी ज़िंदगी में अभी सिचुएशन भी चल रही है, कि कभी कभी हम बहुत ज़्यादा प्यार दिखा देते हैं, मतलब इतना ज़्यादा वी लव समवन सो मच, बी इट अ फैमिली मेम्बर, एनीवन XYZ रैंडमली, एंड प्रैक्टिकली माइंड कहता है कि यार थोड़ा लिमिट में चल. सो या वी नीड टू बैलेंस आउट. लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंसिंग आउट बिटवीन थिंग्स, एंड वन इज़ हार्ट एंड बॉडी, हार्ट एंड माइंड. दैट इज़ वी शुड बी प्रैक्टिकल एज वेल एज वी शुड बी काइंड. वी शुड नॉट बी वेरी प्रैक्टिकल. बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते तो काइंडनेस और हम्बलनेस चली जाती. वी शुड बी kind and humble as well as practical, right? I think this message was more for me than for you guys. Okay, let's get started with today's analysis. And I know we have missed out a lot this month, like 3 से 4 मिस हो गए हैं. एक तो मैंने कर दिया था, 13th को तो आया ही नहीं था न्यूज़पेपर. फर्स्ट का रहता है, 16th का रहता है और 19th का रहता है. 19th का I'll try and do it, but all of this जो भी मैंने न्यूज़पेपर मार्क किया आप लोगों के लिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी हुई है जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी. ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर आप जाओगे एजुगिरी के, वहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी. तो गो, मतलब आपको फर्स्ट का न्यूज़पेपर, 16th का न्यूज़पेपर और 19th का जो पेपर है वो मार्क्ड, प्लस वहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्फो है वो आपको इसकी मिल जाएगी. ठीक है ना. एंड थैंक्स फॉर स्टेइंग विद मी, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. लेट्स गेट स्टार्टेड एंड आई एम सो सॉरी फॉर दिस लॉन्ग एज इंट्रोडक्शन. चलिए स्टार्ट करते हैं. टेंटेटिव गाजा डील रीच टू फ्री होस्टेजेस एंड पॉज फाइटिंग. और देखिए यहाँ पर हमको पता है कि हमास और जो इजराइल की वॉर चल रही है, हमास वर्सेस इजराइल जो चल रहा है, उसके अंदर एक चीज़ हमें पता है कि अक्टूबर के अंदर हमास ने इजराइल पे अटैक किया और होस्टेजेस, बंधक बना के ले गए इजराइल के लोगों को. राइट. तो इजराइल कह रहा है कि देखो मैं सीज फायर, मतलब आई विल स्टॉप फायरिंग गाजा के अंदर, मैं तब रुकूंगा अगर आप हमारे जो होस्टेजेस हैं उनको रिटर्न कर दोगे. तो यहाँ पर एक अग्रीमेंट होता हुआ कि सीज फायर शायद रुक जाए. तो आइए देखते हैं ये क्या है, इसको पढ़ लेते हैं. इजराइल, द US and Hamas have reached a tentative agreement to free dozens of women and children held hostages in Gaza in exchange for a 5-day pause in fighting. A US media report has said, citing people familiar with the deal. While Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and US officials said on Sunday that no deal had been reached, yet Qatari Prime Minister Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani said he had growing confidence that a hostage deal would be reached and the challenges that remain were very minor. तो वो कह रहे हैं कि hostage deal जो है वो हम पहुंच चुके हैं, जबकि US और इसराइल जो है इस चीज़ से मना कर रहे हैं. तो हम पहले तो नाम लिख लेते हैं, hostage deal. क्या कह रहे हैं, इसको क्या कहा जा रहा है? होस्टेज डील. मतलब जो बंधक हैं उनको रिलीज करने की यहाँ पर बात करी जा रही है. तो यहाँ पे लिखेंगे इजराइल, US and Hamas reached a tentative agreement to free
dozens of women and children held hostage in Gaza. ठीक है ना? In exchange of a 5-day pause in fighting. ठीक है. Third is Israel and US refused about any such deal. Qatari PM Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, mediator, like he's involved in these talks, says deal will happen. तो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर हमको पार्टीज इन्वॉल्व देखनी चाहिए. यहाँ पे जो पार्टी इन्वॉल्व है वो है इजराइल और हमास, यूएस और इधर से कतर. तो कतर के पीएम के बारे में हमें पता होना चाहिए. अभी यूएस इजराइल मना कर रहे हैं अबाउट एनी सच डील और 5-day पॉज मिलेगा और उधर से वो जो हमास वाले हैं वो होस्टेजेस जो हैं उनको रिलीज कर देंगे. द होस्टेज रिलीज कुड बिगिन विद इन द नेक्स्ट सेवरल डेज बारिंग लास्ट मिनट हिचेस अकॉर्डिंग टू पीपल फेमिलियर विद डिटेल 6-page agreement. The media report. Under the agreement, all parties will freeze combat operations. मतलब fighting operations जो हैं सारी parties जो हैं उनको stop कर देंगी for at least 5 days, while 50 or more hostages are released in groups every 24 hours. The report said Hamas had taken about 240 hostages during its October 7 rampage inside Israel. The pause is intended to allow humanitarian aid, in the report said, adding the outline of the deal. So that is what they are saying. Now this is very very important. We need to know about the countries that are involved and we need to know what talk it is going. And इसको थोड़ा थोड़ा जो नाम दिया जा रहा है वो kind of hostage deal दिया जा रहा है, वो भी आपको पता होना चाहिए. Moving on, ऑसीज ऑस्ट्रेलिया हम कल वर्ल्ड कप हार गए. ठीक है ना? तो वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया वन फ्रॉम इंडिया. चलो कोई बात नहीं यार, अगली बार जीत जाएंगे. ठीक है. और ऑस्ट्रेलिया 6 टाइम ये चैंपियनशिप जीती है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए आगे चलेंगे. ओडिशा गवर्नमेंट लॉन्चेस स्पोर्ट्स बेस्ड यूथ आउटरीच एम्ड एट पॉलिटिकल गेन. एट अ टाइम व्हेन असेंबली इलेक्शंस आर बीइंग हेल्ड इन 5 states, नवीन पटनायक गवर्नमेंट इन ओडिशा हैज लॉन्च्ड एन एम्बिशियस इनिशिएटिव एम्ड एट द यूथ, इंटीग्रेटेड यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो यहाँ पर हमारा जो हेडिंग होगा वो क्या होगा? इंटीग्रेटेड यूथ डेवलपमेंट, integrated youth development program. ठीक है ना? दैट इज IYDP. ठीक है ना? IYDP. तो इंटीग्रेटेड क्या है ये? इंटीग्रेटेड यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम. ठीक है. यहाँ पे नंबर 1 क्या है? ये उड़ीसा का प्रोग्राम है. उड़ीसा लॉन्च्ड प्रोग्राम इनिशिएटिव. एक मिनट, सॉरी, थोड़ी पेंसिल अब नहीं हो गई है तो बहुत ही तेज तरक्कम से चल रही है. अब मैं इसको बहुत संभाल के रखने वाली हूँ क्योंकि पहले मैं ध्यान नहीं रख रही थी. टू बी फ्रैंक, एम्ड एट द यूथ. यार बहुत महंगी आती है, 500 रुपये का निब आया है. अब नहीं मैं फेंकूंगी, वैल्यू पता चल गई मुझे इसकी. इन फेसेजेस अ फ्लरी ऑफ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स एंड कल्चरल. अब यहाँ पे क्या करते हैं? बहुत सारे टूर्नामेंट, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं. ठीक है ना? ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स एंड कल्चरल कॉम्पिटिशन्स फॉर स्टूडेंट्स. वाइल उड़ीसा गवर्नमेंट सेज द स्कीम्स प्राइमरी. यहाँ पर दूसरे वो कह रहे हैं कि नहीं, ये तो पॉलिटिकल मूव है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर over 12,000 teams with members in the age group 13 to 35 years have registered to participate in tournaments in 6 disciplines: cricket, hockey, football, kabaddi, kho-kho and volleyball under the Yuba Odisha Nabin Odisha initiative. Currently the Department of Sports and Youth Services have 5,000 teams registered for cricket and all of that. तो इसके अंदर ही क्या ऑर्गेनाइज करते हैं वो, यूबा उड़ीसा नाबिन उड़ीसा, क्या है ये, न्यू आओ, ठीक है, टूर्नामेंट। तो जो ये होता है इसके अंदर बच्चों का ऑब्वियसली पता चलता है कौन क्या किस चीज़ में अच्छा है, उसको आगे प्रमोट करने के लिए हेल्प करी जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि इंटीग्रेटेड यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो कौन सी स्टेट की स्कीम है। केरला टू एक्सपैंड फार्मिंग ऑफ जीआई टैग्ड। ना जीआई टैग क्या होता है मैंने पहले भी समझाया था, जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेशन कोई चीज़ जहाँ पर बनाई जाती है वहाँ पर उगाई जाती है, तो ऑब्वियसली अगर वहाँ की वो चीज़ जो है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा वैल्यू की होगी, ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। तो यहाँ पर कर्नाटका का क्या जीआई टैग्ड है, केरला का, सॉरी नॉट कर्नाटका का, ओनाटुकारा सीसम, ओनाटुकारा सीसम। तो यहाँ पे लिख देते हैं ओनाटुकारा सीसम इज जीआई टैग्ड इन आलापुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ठीक है ना। तो ये है आना ओंटारा सीसम, ठीक है ना, ये क्या है, आलापुजा में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे यहाँ पर, अब वी आर गोइंग टू मूव अहेड इन लाइफ। चलो यहाँ पे ये बात कर रही हैं सुएला ब्रेवरमैन की। पहले तो ये है कौन, सुएला ब्रेवरमैन। सुएला ब्रेवरमैन कौन है? इट इज इंडियन ओरिजिन होम सेक्रेटरी, has been sacked for defying her boss by publishing an incendiary opinion. Incendiary का मतलब क्या होता है, ऑफ अ डिवाइस अटैक डिजाइन टू कॉज फायर, मतलब गलत चीज बोल दी इसने, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या बोला, शी इज द इंडियन ओरिजिन, सुनक्स इंडियन ओरिजिन होम सेक्रेटरी हुआ करती थी, नाउ शी हैज मतलब शी इज बीइंग किक्ड आउट, शी हैज बीन किक्ड आउट, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, berated the police for criticize the police, he will now divided country whose views spent, ठीक है, criticized police for double standard of ignoring pro-Palestinian mobs। अब यहाँ पे प्रो पैलेस्टीनियन मॉब्स क्या हैं आपको समझना पड़ेगा। जैसे ही इजराइल और हमास की वॉर लगी है, ठीक है ना, अब यहाँ पर हमास को लोग मतलब पैलेस्टीन के भी देखो यहाँ पे ये तीन ग्रुप्स आ जाते हैं, एक ये कंट्री, ये भी कंट्री, हमास, ये मतलब कुछ ने रिकग्नाइज करे हुए, कुछ ने नहीं, सेम ये, बट ये मोस्टली रिकग्नाइज है। हमास जो है एक टेररिस्ट ग्रुप है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही इन दोनों में लड़ाई लगी तो पैलेस्टीन वाले जो लोग हैं उनको दुख पहुंचा, ऑब्वियसली उनके ऊपर उनकी जान जा रही है। तो लोग जो है वो प्रो पैलेस्टीन मतलब पैलेस्टीन के साथ है और कह रहे हैं इसराइल को कि आप रुको, ठीक है ना। अब कुछ लोग जो है वो इसराइल के साथ है, हमास के अगेंस्ट है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे प्रो पैलेस्टीनियन मॉब्स होने लगे, मतलब पैलेस्टीनियन की साइड होने लगे इसराइल के अगेंस्ट। तो यहाँ पे जो सुएला ब्रेवरमैन है उन्होंने कहा कि पुलिस जो है वो डबल स्टैंडर्ड है उसके, वो पैलेस्टीनियन मॉब्स जो है उनको वो रोक नहीं रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट, ठीक है। नाउ मिस्टर ब्रेवरमैन हैज स्पेंड, अब यहाँ पे इनकी इमिग्रेशन की पॉलिसी भी बहुत ज़्यादा वो होती है, ठीक है ना, इमिग्रेशन की पॉलिसी जो है, ठीक है ना, शी इज़ नॉट इन फेवर ऑफ इमिग्रेंट्स। यहाँ पे मैं बढ़ा देती हूँ, दैट सुएला ब्रेवरमैन हैज़ अ प्रॉब्लम विद इमिग्रेशन, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे सुएला ब्रेवरमैन, इनका नाम याद रखना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हैज़ अ प्रॉब्लम
विद इमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन का मतलब कि जो भी इलीगली एंटर करना चाहता है कंट्री में या फिर इवन लीगली भी बाहर से आकर सेटल होना चाहता है तो वो ये मतलब अलाउ नहीं करना चाहती है। तो शी वॉज द वन हु केम अप विद रवांडा पॉलिसी। रवांडा पॉलिसी क्या था कि कोई भी अगर इलीगली ब्रिटेन में घुसता है तो उसको रवांडा भेज दो, ठीक है ना, और वहां से अपने कंट्री में भेज दो, बट यूएसए में नहीं, बट हम यूके में नहीं रखेंगे। दोबारा से मैं आपको ये बताती हूँ। तो बेसिकली कौन है ये हमें पता होना चाहिए। इनका नाम सुएला ब्रेवरमैन। ये जो है शी इज द फॉर्मर होम सेक्रेटरी। क्या है ये? शी इज द होम सेक्रेटरी। ठीक है, एंड क्रिटिसाइज व्हाट हैपेंड, व्हाई हैज शी बीन रिमूव्ड। नाउ यहाँ पे हम लिख लेंगे नाउ रिमूव्ड। She has been removed. Criticize police for double standards. क्यों double standards? कि भैया तुम वैसे तो प्रोटेस्ट होने नहीं देते हो, बट जहाँ पे प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट हो रही है कि लोग इसराइल के अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं, तुम वो अलाउ कर रहे हो, ये तो गलत है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस शी वॉज रिमूव्ड। एंड नाउ ऑल्सो फॉर वन मोर पॉलिसी शी इज वेल नोन इमिग्रेशन के लिए कि ये अलाउ नहीं करती आउटसाइडर्स इन यूके। ठीक है, आउटसाइडर्स इन यूके अलाउ नहीं करती है। तो रवांडा पॉलिसी लेकर आई। रवांडा पॉलिसी की कोई भी इलीगली अगर ब्रिटेन में आएगा तो हम उसको रवांडा भेज देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये पॉलिसी खत्म कर दी है यूके के। बट या तो आपको ये याद, सुएला ब्रेवरमैन नाम याद करना है और दो चीज़ें याद करनी है कि ये क्या पोस्ट थी, क्यों निकाली गई और इमिग्रेशन से इनका क्या ओपिनियन था के बारे में। अब यहाँ पर एक डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 19 नवंबर को, वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस, वर्ल्ड Day of Remembrance of World Traffic Victims। दोबारा से वर्ल्ड फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स। और ये कब होता है? 19 नवंबर को। कब होता है ये होता है 19 नवंबर को। व्हेन इज द डे सेलिब्रेटेड ऑन 19 नवंबर। ठीक है ना, ये 19 नवंबर को हमारा जो डे है सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट की तो डे के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पे ना कुछ नंबर्स शेयर करे हुए हैं कि 3 लाख पीपल किल्ड ऑन द रोड इन इंडिया according to United Nations World Health Organization। ठीक है ना, अब ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के एस्टिमेट दे रही है कि 3 लाख लोग जो हैं मर जाते हैं बेचारे। ठीक है ना, तो मतलब पूरे ये साल का मतलब दिया जा रहा है तो 34 पीपल डाई एवरी आवर ऑफ एवरी डे। दैट इज टू मच। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ के बारे में डिस्कशन हुई। इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसके अंदर चेंजेस लेकर आए जा रहे हैं। ठीक है ना, अमेंडमेंट हो रही है, एनहांस्ड डाटा कलेक्शन हो रही है। जो डाटा कलेक्शन करी जा रही है वो बहुत बढ़िया है। फ्रॉम रोड क्रैशेस, इम्पैक्टफुल मेजर्स दैट विल हेल्प एक्सपर्ट्स बेटर अंडरस्टैंड वेयर एंड वाई क्रैशेज आर अकरिंग एंड देयरफॉर हाउ टू रिड्यूस देम। ये सब चीज़ें जो है डाटा इकट्ठा करा जा रहा है इंडिया से रिलेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं रोड सेफ्टी इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल चैलेंज बट द बेनिफिट्स दैट कम विद एड्रेसिंग इट कैन बी इक्वली प्रोफाउंड। मतलब ये एक चैलेंजिंग काम है, बट हाँ अगर इसको हम जो रोड सेफ्टी है उसको अप्लाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हम देख सकते हैं। ठीक है ना, व्हाट वी नीड इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सेफ सिस्टम अप्रोच एज इन्फोसिस्ड इन यूएन सेकेंड डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड्स। तो यूएन जो है सेकेंड डेकेड मतलब 10 साल का प्लान लेके चल रहा है एंड फुल वो कह रहे हैं कि ऑर्डर कह रहे हैं आप इसको इम्प्लीमेंट करो। और मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है जो चेंज किया है एक्ट में, वो लॉज आप अप्लाई करो। तो यहाँ पर हमें डे पता होना चाहिए, कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिया के जो डाटा है वो हमें पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। डेज वैसे भी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पे RN रवि वाला जो पॉइंट है वो आ गया है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तमिलनाडु गवर्नर RN रवि एक्ट ऑफ इट होल्डिंग एसेंट टू बिल्स कंसर्निंग यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट इज नथिंग बट कॉन्स्टिट्यूशनल टाइनरी। It is a gross abuse of the power granted by the Constitution to give or refuse assent
to bills passed by the legislature. या देखो, अब मैंने आर्टिकल 200 के बारे में बहुत बार डिस्कशन कर ली है कि यहाँ पे पावर की बात होती है, क्या क्या चीज़ें जो है वो कर सकते हैं. अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि आर्टिकल 200 के अंदर एक जो पावर है कि विदहोल्ड द एसेंट, विदहेल्ड द एसेंट, मतलब आपने ना तो अप्रूव किया, ना तो येस किया, ना नो किया, और ना ही प्रेसिडेंट के पास भेजा. तो इसके अंदर क्या होगा, उस बिल का, उस प्रपोजल ऑफ लॉ का, तो क्या आपको नए बिल लेकर आना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, इतनी डिटेल में क्वेश्चन नहीं आता. तो आर्टिकल 200 में क्या है, बस आपको यही पता होना चाहिए. उसके बाद स्टीयरिंग रोड सेफ्टी इन इंडिया बैक ऑन टू द राइट लेन, ये मैंने दोबारा से पोस्ट कर दिया, हो गया ये हमारा. मेकिंग पब्लिक एजुकेशन इंक्लूसिव. अब यहाँ पे बात करें एजुकेशन के बारे में, देयर इज नो डिनाइंग दैट एजुकेशन इज अ ह्यूमन राइट. ठीक है, एजुकेशन जो है वो ह्यूमन राइट है. ठीक है, उसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं, इट ऑट टू बी accessible and affordable for all sections of society so that the development is truly inclusive. Yet a study by IIM Ahmedabad's Right to Education Resource Center confirmed the well-known but disconcerting truth that parents lack trust in government schools due to poor quality of education and prefer to admit their children into private schools even though that means spending significantly more on tuition and other fees. अब यहाँ पर क्योंकि IIM ने ये डिटेल्ड इंफॉर्मेशन निकाली है तो हम लिख लेते हैं, ठीक है ना. IIM अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद राइट टू एजुकेशन रिसोर्स सेंटर स्टडी फाउंड द फॉलोइंग. ठीक है, इसमें जो पहली चीज है वो क्या है, disconcerting truth that parents lack trust in government schools due to poor quality of education. Number 2, parents prefer private schools. अब यहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात किया हुआ है, उड़ीसा स्कीम्स. तो यहाँ पे ये जो पहली स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं वो कौन सी स्कीम है, उड़ीसा आदर्शा विद्यालय. ठीक है, दैट इज OAV. क्या है, दैट इज OAV. क्या है ये, उड़ीसा. ठीक है ना, क्या है ये, दिस इज उड़ीसा. एक मिनट, इसको मैं हाईलाइट कर दूं. उड़ीसा आदर्शा विद्यालय, OAVs हैं ये. ठीक है, OAVs क्या है, ये मतलब पहले तो ये सारी की सारी इनिशिएटिव्स बता रहे हैं. ठीक है, मो स्कूल अभियान है, 5T हाई स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम है. ठीक है ना, ऑन देयर वे टू मेक education world ranking Pulsara block of winner 5th best school in order to. अब यहाँ पे क्या करें, उड़ीसा model aims to bridge the rural urban gap by providing accessible quality and affordable education, English medium education. क्या कर रहे हैं ये OV के AV के अंदर. ठीक है, model aims to bridge the rural urban gap by providing accessible, affordable English medium education. ठीक है ना, तो ये स्कीम्स हैं. यहाँ पे जो मेजर क्वेश्चन बन सकता है ना वो यही बन सकता है कि जो डिफरेंट स्कीम्स हैं वो कहाँ की हैं. तो थोड़ा सा हम डिटेल में लिख भी रहे हैं कि किस में क्या कर रहे हैं. मो स्कूल अभियान क्या है, ये 2000 लॉन्च्ड इन, इसका फर्स्ट पॉइंट बनेगा लॉन्च्ड इन 2017, strives to motivate and mobilize the alumni community to contribute towards revamping government schools
इन उड़ीसा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अब यहाँ पर ये बताइए कि आपको इसका मतलब पता है कि एलुमनाई का मतलब क्या होता है, कि जो लोग वहाँ से पढ़े हैं, ठीक है ना, उनको बोल रहे हैं कि आप आइए और इन स्कूल्स में, इन स्कूल्स को चेंज करने में हेल्प करिए, पैसा कंट्रीब्यूट करिए, जो भी आप कर सकते हैं वो करिए और स्कूल्स में चेंज लाने का कोशिश करें। ये है सेकेंड स्कीम। और एक है थर्ड स्कीम जो कि है 5T। ठीक है। और इसी स्कीम को क्या मिला, वो ऊपर वाली को मिला था। तो थर्ड पॉइंट जो है, सैप अंडर द विच इनेबल्स द एलुमनी मेक फाइनेंशियल 5T, ये थर्ड वाला लिख लेते हैं, दैट इज 5T हाई स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। अब ये 5T कहाँ पर है, लॉन्च्ड इन, सबसे पहला लॉन्च्ड इन 2021। 5T का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, टाइमलाइननेस, लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या मुझे याद करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं। रीडिंग मार लीजिए और आपको ये पता होना चाहिए कि 5T हाई स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम जो है वो उड़ीसा का, इतना भी अगर पता है तो बहुत है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। द रोल ऑफ गवर्नर इन लेजिस्लेचर, यहाँ पे दोबारा से गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। RN रवि जो है वो बिल्स पास नहीं कर रहे हैं तमिलनाडु के, इसलिए हम ये आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 200 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट व्हेन अ बिल पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर इज प्रेजेंटेड टू द गवर्नर फॉर देयर एसेंट दे हैव 4 ऑल्टरनेटिव्स। ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, येस और नो बताइए। ठीक है, 4 ऑल्टरनेटिव्स होते हैं एसेंट टू द बिल में, विद होल्ड एसेंट, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 200 के नोट्स हमने कहाँ पर बनाए हैं, वो आपको कोई ना कोई चार्ट सेक्शन में ज़रूर बता देगा, प्लीज़ वहाँ से पढ़ लीजिए, मैं रिपीट नहीं करूँगी ये। अब यहाँ पे शमशेर सिंह केस बता रहे हैं। देखो यार, ये वाला पॉइंट मैं बार बार रिपीट करके बताती हूँ कि बिल क्या है, प्रपोज्ड लॉ, कि जैसा लॉ हम चाहते हैं वो क्या है, एक बिल है। ठीक है ना, बिल की डिस्कशन होती है लेजिस्लेचर के अंदर, वोटिंग हुई जाती है, कुछ चेंजेस करने हैं वो करे जाते हैं, डिस्कशन, और जैसे ही उसको येस मिल जाती है, पास हो जाता है वो लेजिस्लेचर में से, तो वो कहाँ पर जाता है, वो गवर्नर के पास जाता है। अब जो गवर्नर है वो, उसके पास आता है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 के अंदर डिफरेंट ऑप्शन दे रखी हैं कि वो एसेंट दे सकता है, गिव एसेंट, विद होल्ड एसेंट, मतलब वो ना तो अप्रूव करे ना ही वापस भेजे, ठीक है, सेंड बैक, ठीक है, वापस भेज सकता है, या फिर प्रेसिडेंट को भेज सकता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या, अप्रूव हो गया तो ये लॉ बन गया, विद होल्ड कर लिया तो रह गया, सेंड बैक वापस भेजेंगे, उन्होंने चेंजेस कंसिडर करनी है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि गवर्नर ने कहा ये चेंज करो तो वो करेंगे, उनकी मर्जी है। स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं करेगी। एंड वैसे का वैसा बिल भी सेम भेज सकते हैं और फिर उसको अप्रूव भी करना पड़ेगा। अगर एक बार सेंड बैक कर दिया बिल और वापस जब गवर्नर के पास आता है उसको अप्रूवल देना पड़ता है, और प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए वो बिल भेज सकता है प्रेसिडेंट के पास, आगे फिर प्रेसिडेंट देखता क्या करना है। तो यहाँ पर विद होल्ड वाला ऑप्शन जो है वो सबसे बुरा माना जाता है, क्योंकि ना तो वो कुछ कर रहे हैं ना कुछ और, तो ये हमें पता है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं, शमशेर सिंह केस के अंदर ये डिस्कशन हुई थी, द गवर्नर डज नॉट एक्सरसाइज देयर डिस्क्रिशनरी पावर्स वाइल विद होल्डिंग एसेंट और रिटर्निंग अ बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर, दे आर रिक्वायर्ड टू एक्ट एज पर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब यहाँ पे ये क्या कहना है कि गवर्नर के पास भैया पावर ही नहीं है कि वो अपना कुछ चला सके, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सुननी ही पड़ेगी, उसको सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ही सुननी है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। क्या मुझे जजमेंट याद करने की जरूरत है? नहीं, मुझे आर्टिकल 200 के बारे में पता होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। चलिए आगे चलेंगे। अब यहाँ पर IAF चीफ स्ट्रेसेस नीड टू इन्वेस्ट इन न्यू टेक्नोलॉजीज, वो कह रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। अब यहाँ पर जो है क्या चल रहा था, साइनर्जिया कॉन्क्लेव इन 2023। ठीक है ना, ये बेंगलुरु में हो रहा है, एक बार चेक कर लेना कि बेंगलुरु में ही हो रहा है, ये बेंगलुरु में हो रहा है। इसमें कहाँ पे बात कर रहे थे, एरोस्पेस एंड डिफेंस के बारे में, एरोस्पेस एंड डिफेंस के बारे में, इसके बारे में बात कर रहे थे, एरोस्पेस और डिफेंस के बारे में बात कर रहे थे, दैट इज साइनर्जिया कॉन्क्लेव। आगे चलेंगे, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ जॉर्जिया इलेक्शन फ्रॉड, तो ये तो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे जॉर्जिया इलेक्शन फ्रॉड केस के बारे में, लिखते हैं जॉर्जिया
ठीक है, जॉर्जिया इलेक्शन फ्रॉड केस। अब यहाँ पे ये फर्स्ट क्या है, देखिए इसमें क्या हुआ था, स्टेट इलेक्शन फ्रॉड केस वेयर फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड 18 एलाइज, डोनाल्ड ट्रंप उसके उनके 18 फ्रेंड्स, उनके जो साइड के थे, ठीक है, वर क्रिमिनली इंडिक्टेड, फॉर्मल चार्ज वन के हैज रिटर्न टू सेंटर स्टेज फॉलोइंग अ स्ट्रिंग ऑफ प्ली डील स्ट्रक विद द फुलटन काउंटी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बाय लेट अक्टूबर। 4 out of 18 defendants, 3 lawyers and a bail pleaded guilty to abetting a conspiracy टू सबवर्ट। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, क्या करने की कोशिश करी, कॉन्स्पिरेसी, अबेटिंग अ कॉन्स्पिरेसी टू सबवर्ट द 2020 presidential election in Georgia, where Mr. Trump lost to President Biden। ठीक है ना, मतलब चेंज करने का डिसीजन, मतलब एलिगेशंस लगाए गए कि इलेक्शंस ढंग से नहीं हुए हैं, ये सब किया गया, इन्होंने ये सब एलिगेशंस लगाए हैं और इनको इंडिक्टमेंट हो गया, फॉर्मली चार्ज्ड हो गए हैं, चार्ज ये लगा दिया गया है, चार्ज ऑन डोनाल्ड ट्रंप, जो कि फॉर्मर मतलब रह चुके हैं यूएसए के प्रेसिडेंट, प्लस उनके जो 18 एलाइज हैं, मतलब जो उनके 18 दोस्त हैं। ठीक है, ऑन अक्टूबर 19 लॉयर सिडनी पॉवेल प्लीडेड गिल्टी टू 6 misdemeanors following accusations of conspiracy to intentionally interfere with the conduct of elections. One of Mr. Trump's closest ally, Mr. Powell, had in the aftermath of 2020 presidential race advanced the theory that Dominion Voting Machines Company in collusion with Venezuelan intelligence conspired to flip the ballot to Trump's opponent। ठीक है ना, this is the claim that lies at the heart of several federal suits she filed only to be subsequently dismissed। तो मतलब ये कहा गया कि जो वोटिंग मशीन है उसमें कुछ गड़बड़ी है। नाउ फाइनली सिडनी पॉवेल, ये लिख लेते हैं, सिडनी पॉवेल, ये थर्ड पॉइंट बनेगा, प्लीडेड गिल्टी टू 6 misdemeanors। ठीक है ना, मतलब कहा कि हाँ ठीक है भाई, ये मतलब अब इन्होंने इसमें क्या किया, आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए यही पता होनी चाहिए कि 2020 में इन्होंने इलेक्शंस जो थे उनको चेंज करने की कोशिश करी, फॉल्स एलिगेशंस लगाई। ठीक है ना, इन्होंने क्या कहा, एडवांस, नाउ दिस लेडी शी एडवांस द थ्योरी दैट डोमिनियन वोटिंग मशीन्स कंपनी in collusion with Venezuelan intelligence conspired to flip the ballot to Trump's opponent। Another potential witness against Mr. Trump could be Jenna Ellis। Mr. Powell had then counseled Mr. Trump to hand over the country's voting machines to the military and rerun the presidential contest। Another potential witness against contest is, तो इन्होंने ये बेसिकली, हमें डिटेल्स में नहीं जाना है, हमें पता होना चाहिए कि ये सारे एलिगेशंस जो हैं ट्रंप और उनके एलाइज ने लगाए थे कि जो वोटिंग है वो फेयर नहीं है, और जॉर्जिया में जहाँ पर मिस्टर ट्रंप को मिस्टर बाइडन, जो कि अभी प्रेजेंट हैं, ली प्रेसिडेंट है यूएसए के, उनको हरा दिया था जॉर्जिया में। ठीक है ना, तो ये फॉर्मली चार्ज किए गए हैं। ठीक है, तो ये लॉयर जो है इन्होंने भी यही बोला कि भैया गलत किया है ये सब। अब इसमें आपको इतना सा ही पता होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है इतने डिटेल में जाने का। अब हम बात करेंगे, ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अवार्ड्स का क्वेश्चन है। बात करेंगे इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2022 किसको मिला, जॉइंटली अवॉर्डेड टू इंडियन
Medical Association and Trained Nurses Association of India as representatives of COVID-19 warriors in the कंट्री। तो यहाँ पे इंदिरा गांधी किसके बारे में बात हो रही है? इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2022। ये 2022 का अवार्ड है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो प्लीज़ किसको मिला है? ये मिला है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड ट्रेंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ट्रेन नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जॉइंटली अवार्ड दिया गया है इन दोनों को। किस लिए? कोविड-19 वॉरियर्स ऑफ द कंट्री है ये, तो इसलिए दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मिस गांधी सेड द अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन द नेम ऑफ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल लीडर्स ऑफ 20th सेंचुरी एम्स टू ऑनर वुमेन, मेन एंड इंस्टीट्यूशंस दैट हैव डन एग्जाम्पलरी वर्क। अब सेकेंड वर्क करेंगे। अवार्ड एम्स टू ऑनर women, men and institutions that have done exemplary work, ठीक है। इंदिरा जी herself championed and worked for in her astonishing career. She added that the life of Indira Gandhi will stand out for her tremendous ability to fight against the odds. ये उनकी डॉटर इन लॉ सोनिया गांधी ने बोला है। हमें पता होना चाहिए अवार्ड किस लिए दिया जाता है, ये वाला, और इस बार किसको दिया गया है। There are 77 Indian military personnel in Maldives. ये हम लिख लेते हैं, 77 Indian personnel इन मॉलडीव्स। देखो यार, मॉलडीव्स का जो अब लीडर बना है उसने इलेक्शन ही इसी बेस पे लड़े हैं कि भाई वो जो 77 इंडियन पर्सनल है मॉलडीव्स में, मैं उनको बाहर निकलवा दूंगा, ठीक है ना। तो अब तो वो निकालेगा ही फॉर श्योर, ठीक है। अब ये वहां पे कर क्या रहे हैं? तुम कहोगे क्यों भेजा है उनको, ठीक है। तो इसलिए भेजे हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू formally requested India to withdraw its troops from the island. तो हमारे वाले कुछ नहीं, इनको जो हमने हेलीकॉप्टर वगैरह गिफ्ट करे हुए हैं वो चला रहे थे, अब ले आएंगे हम अपना सामान वापस, ठीक है ना। तो 24 जो थे ये लिखने की जरूरत नहीं, वो मैनेजिंग पर्सनल्स दे वर मैनेजिंग लिख लो, दे वर मैनेजिंग 2 हेलीकॉप्टर्स एंड अ डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, ठीक है ना, जो इंडिया ने दिया था इनको। ठीक है, अब यहाँ पर ये वापस ले आएंगे। यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं हमारी तरफ से कौन गए थे? यूनियन मिनिस्टर, ये लिखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस किरण रिजिजू, ठीक है, अटेंडेड द oath taking ceremony of the Maldivian प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो ये तो जो थे इन्होंने अटेंड किया था, एंड ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद
यहाँ पर एक जो क्वेश्चन हो रहा है, द अग्रीमेंट्स इन क्वेश्चन इंक्लूड मिस्टर फिरजुल सेड द फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोहेल साइंड ओवर 100 अग्रीमेंट्स विद इंडिया एंड द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इज रिव्यूइंग देम। अब देखो यार, ये जो मुइजू है ना, ये चाइना की साइड का ज़्यादा है और हमारी साइड का कम है, ठीक है ना। जो सोली था पहले प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स, वो हमारी साइड का था, ठीक है। तो अब वो 100 अग्रीमेंट्स चेक करेगा, कुछ उसमें प्रॉब्लम भी लग रही है। तो यहाँ पर हम ये 4th पॉइंट लिख लेते हैं, the former administration of Maldives under Mr. Solehe signed over 100 agreements with India, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन नाउ, अब यहाँ पे रिव्यूइंग न्यू गवर्नमेंट रिव्यूइंग द अग्रीमेंट्स, ठीक है ना। और क्वेश्चन इंक्लूड द अग्रीमेंट्स इन क्वेश्चन, अग्रीमेंट इन क्वेश्चन इंक्लूड यूथुरु थीला फालतू, ठीक है। अभी ना इसके बारे में हम तब पढ़ेंगे अगर हमें लगा कि ये बहुत ज़्यादा टॉक ऑफ द टाउन बन रहा है, नहीं तो अभी हमें ये पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए। जो मैंने थोड़ी सी स्टोरी थी वो आपको बता दी। अब यहाँ पर एनिमेशन फिल्म ऑन होम वॉरियर चोजन फॉर IFFI 2023, पूरा का पूरा टाइटल हम लिख लेंगे, एनिमेशन फिल्म ऑन अ होम वॉरियर chosen for IFFI 2023, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, अ 19-minute लॉन्ग एनिमेशन फिल्म ऑन एन आइकॉनिक ऑन एन फिल्म, ये लिख लो, फिल्म ऑन एन आइकॉनिक अ होम जनरल written and directed by IPS officer in Assam, selected for Indian Panorama section of International Film Festival of India 2023 in गोवा। अब यहाँ पे मूवी का नाम क्या है, लाचित द वॉरियर, फिल्म शोकेसिंग द heroics of लाचित बोरफुकन revered in Assam for preventing। अब यहाँ पे ये हमें याद रखना है, द शोकेसिंग फिल्म showcasing heroics of Lachit Borphukan revered in Assam for preventing the Mughals from capturing Assam in the 1600s। मतलब उन्होंने असम को कैप्चर नहीं होने दिया, मुगल से बचाया असम को कैप्चर होने से इन 1600s, ठीक है ना। लार्ज स्पॉट्स ऑफ प्रेजेंट डे असम वर अंडर होम्स हु reigned for 600 years until the arrival of British in 1820, ठीक है ना। होम्स रूल्ड असम for 600 years until arrival of the British in the 1820s। Lachit commanded the home army। the film, ये लिख लेंगे, Lachit commanded
द अहोम आर्मी। जितने भी क्लाट वाले बच्चे हैं प्लीज़, अहोम जो थे ना, ये यूनिसेफ के लिए भी जो इनका बरियल सिस्टम होता है जो वो बने हुए हैं, वो यूनिसेफ के लिए रेफर हुए थे हेरिटेज के लिए। उसके ऊपर ज़रूर थोड़ी सा पढ़ लेना, बिकॉज ये कनेक्टेड क्वेश्चन है, मैसेज फॉर्मेट में आ सकता है। द फिल्म ट्रेसेस द जेनेसिस ऑफ द मिलिट्री कमांडर्स एंसेस्ट्री, हिज क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी, हिज डेक्स्टरस स्किल्स, वॉरफेयर, ये सब कुछ। रिटन डायरेक्टर पार्था साराथी महांता, द डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस, प्रोड्यूस्ड बाय मीना मानांथा, इंद्रानी बरुआ। द फिल्म वॉज स्क्रीन इन 10 फेस्टिवल्स। तो इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ये भी लिख लेते हैं, किसने 6 पॉइंट लिखेंगे। रिटन डायरेक्टर पार्था साराथी महांता, produced by Meena Mahanta and Indrani Barua। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद नजीबीर नोटबुक, अ डीप डाइव इनटू इंडियाज रिवर्स। तो ये लिखेंगे नादी जीबीर नोटबुक। ये क्या है? A deep dive into India's rivers wins literary award in West Bengal। तो ये क्या है? With the West Bengal literary book on the rivers of India was honored with well-known literary award in West Bengal। ठीक है, बाय राइटर कौन है? बाय सुप्रातिम कर्माकार। ठीक है, ऑनर्ड विद, अवार्ड का नाम बता रहे हैं, वेस्ट बंगाल का अवार्ड है, ये हमने यहाँ लिख दिया था। अवार्ड का नाम क्या है? और अवार्ड का नाम है नमिता चट्टोपाध्याय संहिता साहित्य सम्मान 2023। ठीक है ना, ये वाला जो है दिस इज इम्पॉर्टेंट अगेन। ठीक है ना, पहले वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। रिवर्स के बारे में बुक है, इज इम्पॉर्टेंट वर्क एज फॉर साइंस ऑफ रिवर्स इज कंसर्न। ठीक है, मिस यूनिवर्स कौन बनी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। मिस यूनिवर्स 2023 निकारागुआज, ये कंट्री का नाम है, और बंदी का नाम है शेनाइस, एक मिनट, शैनिस पेलासियोस। ठीक है ना, ये 72nd एडिशन था। हैड मेड इट टू द टॉप 20 कंसेसस। मिस इंडिया कौन थी वहाँ पे? श्वेता शारदा। चलिए आगे चलेंगे हम। ऑस्ट्रेलिया जो है 1987 में भी जीता था। फिर ऑस्ट्रेलिया 6 टाइम्स जीत चुका है, ये ईयर्स के अंदर ये 6 टाइम था। ये सॉरी, इंग्लैंड वाला मैंने माफ़ कर दिया। तो इन ईयर्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया 6 टाइम्स वर्ल्ड कप जीत चुका है। तो ईयर्स लिख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के, 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 और 2019। ठीक है, सॉरी 2023। ऑस्ट्रेलिया वन क्रिकेट वर्ल्ड कप। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट है 1993, ये सारा ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता ये। अब इंडिया ने कब कब जीता था? इंडिया ने एक तो 2011 में जीता था, 2011 में जीता था, और 1983 में जीता था। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। विराट कोहली बिकेम गॉट द टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड। खुश नहीं है बेचारा, खुश तो वो इसलिए होता है, उसने कहता ये मत दो मेरे को ट्रॉफी चाहिए थी। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट अवार्ड
कितने रन्स बनाए? 765 रन्स। चलिए कल क्या हुआ? नोवाक जोकोविच won ATP finals from Jannik Sinner। ये टेनिस का है। उसके बाद नेक्स्ट मार्क्स वर्स्टेपन वन 18th विन, वन 18 क्लेम्ड। ठीक है, कौन से जीत गए? लास वेगस। भाई ये बहुत, वो यही जीतता है, मतलब बंदा छा रखा है कब से। बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे जो टॉपिक, अगर आप NL SAT के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर आप SLAT के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या AIAT के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको ऐसे जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। सॉरी फॉर द वर्ब। तो एक ब्रॉडकास्टिंग बिल आया है जिसमें गवर्नमेंट क्या कह रही है, आप सेल्फ रेगुलेशन करिए। तो यहाँ पे लिखेंगे ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 किससे डील करता है? ठीक है, ये क्या कहता है कि सेल्फ रेगुलेशन, मतलब जो ब्रॉडकास्ट करते हैं टीवी शोज वगैरह, ठीक है ना, तो वो सेल्फ रेगुलेशन मतलब वो इंश्योर करेंगे कि हम कुछ गलत ना करें, और इसके लिए उनकी एक इंटरनल कमिटी होगी। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन बाय ब्रॉडकास्टर्स एंड ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क्स। अब यहाँ पर इतना तो पता होना चाहिए सबको ही। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो कमिटी बनाई जाएगी, सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म की जो कमिटी होगी, उसकी पर्सनल डिटेल्स और नंबर्स जो है वो पब्लिक करने होंगे। तो ऑर्डर कह रही है कि पर्सनल डाटा, जो डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन है, वो वायलेट होगी। तो इसके ऊपर आपके ओपिनियंस होने चाहिए। किसके ओपिनियंस होने चाहिए? जिन्होंने जो पेपर्स के मैंने नाम लिए वो। बाकी सबको बस ये पता होना चाहिए कि ये ऐसा कुछ बिल आया है जिसमें सेल्फ रेगुलेशन, मतलब ये कंपनीज जो हैं ये खुद से रेगुलेट करेंगी चीज़ों को। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग यू कैन गो टू loggery.in। वहाँ पे आपको हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे। जो ये करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं दे आर जस्ट ऑफ 7 to 8 आवर्स के अंदर आपका पूरा का पूरा फुल मंथ हो जाएगा। ये मई से लेकर सितंबर तक के अवेलेबल हैं। यस, सितंबर भी मैंने अपलोड कर दिया है। इसके जो डायरेक्ट लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एंड गो हेड एंड बाय देम। एंड मॉक टेस्ट भी आप चेक कर सकते हैं loggery.in पर। दैट्स इट, Loggery signing off, Edugery signing off। I'll see you super soon tomorrow at 6 PM. Bye bye, take care.